Hello, welcome back to my channel. Today, as I told, today I will start numericals on calorimetry. Already two classes I took in calorimetry. Today, from two sections, that is from specific heat capacity. One section of numericals are there, and in other section from latent heat. So from two sections, whatever important numerical I will try to cover today. So first, this is one numerical. Two blocks P and Q of different metal having their mass in the ratio 2:1 are given same amount of heat. Find the ratio of their specific heat capacity and heat capacity. Okay. So first you see Q equal to M1 C1 delta T. सेम Q M2 C2 डेल्टा T। यहाँ पे दोनों का डेल्टा T समान होता है, Q भी समान होता है। मैटर मास इन द रेशियो, देयर फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इम्प्लाइज हम दोनों को इक्वल कर देंगे, Q दोनों का Q समान है, M1 C1 डेल्टा T इक्वल टू M2 C2 डेल्टा T। delta t cancel. Okay, implies C1 by C2 equal to M2 by M1. But we have M1 by M2 equal to 2:1, implies M2 by M1 equal to 1 by 2, implies C1 is to C2 equal to 1:2. So find the ratio of their heat capacity or thermal capacity. I already told that is C1 dash delta T, because M into C equal to C dash, which is known as heat capacity or thermal capacity. I just recall you. Okay. Then this one C2 dash delta T. Okay. Comparing C delta T cancel. Okay. Q दोनों का सेम होता है, इम्प्लाइज C1 डैश इक्वल टू C2 डैश, इम्प्लाइज C1 डैश is to C2 dash equal to 1:1. So this is one of the important numerical which is expected in this chance. I already told one other type question. If two bodies A and B, one have higher specific heat capacity than other, which is a good conductor. जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होता है वो बैड कंडक्टर होता है। याद रखना, जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होता है वो गुड कंडक्टर होता है। लास्ट क्लास आई ऑलरेडी एक्सप्लेन अबाउट दैट न्यूमेरिकल, that type of question. So today I will start next numerical from Selina book. So new edition Selina book. Better you have to follow new edition Selina book, page 282. No, first page, not page 282. That is Selina book, page 271, number 11. Page 271, number 11. Page 271, number 11. Okay. 200 gram of hot water at 80 degrees Celsius. So first you draw one figure like this. 200 gram. This is hot water at 80 degrees Celsius. T1 equal to 80 degrees Celsius. Okay. Is added to 400 gram of cold water.
cold water माने 400 ग्राम of cold water at 10 degree Celsius. T2 equal to 10 degree Celsius. Okay. Calculate the final temperature of the mixture. So final temperature T equal to how much? Okay. This is the question. So 200 ग्राम of hot water at 80 डिग्री सेल्सियस, इसको हम 400 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर में डालेंगे. ये 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता. तो जब इसको डाल दिए यहाँ पर, तब फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? ओके. हम जानते बाय द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी. Imply heat lost by hot water, heat lost equal to heat gain by the principle of calorimetry. ओके. हीट लॉस्ट क्या होता है? इसका टेम्परेचर 80 से आ जाएगा टी टेम्परेचर को. सो MC डेल्टा टी 200 इंटू 2 साइड वाटर इंटू डेल्टा टी हो गया 80 माइनस टी. तो T2 हो हीट गेन इक्वल टू M कितना है? M 400 इंटू सी, दोनों में सी कॉमन रहेगा. इसका टेम्परेचर बढ़ेगा 10 से, टी को चेंज हो जाएगा T माइनस 10. ओके. इम्प्लाई सी कट गया. इम्प्लाई 80 माइनस टी इक्वल टू 20 माइनस 20 implies T equal to गड़बड़ हो गया क्या? 200 ग्राम 80 400 ग्राम 10 डिग्री. Calculate the final temperature ready to pour in cold water. Heat taken, calculate the final temperature of the mixture. तो heat lost equal to MC delta T, और C से T heat gain 400 into C T minus 10. तो अब ये हो गया 20 minus 20. ओके. तो 3T equal to 90. 80 100. तो P equal to 100 by 3. तो अब equal to 33.3 degree Celsius. Okay. So this one complete. Then सेलिना का नंबर 12, सेम पेज 271 नंबर 12. Page 271 number 12. The temperature of 600 gram of cold water. The temperature of 600 gram of cold water. 600 gram cold water rises by 15 degree. Suppose इसका इनिशियल टेम्परेचर T1 था, वो फाइनल मिक्सचर का टेम्परेचर T हो जाएगा. तो इसका टेम्परेचर T1 से T को राइज हुआ, राइजेस बाई 15 डिग्री. इम्प्लाई T माइनस T1 इक्वल टू गिविंग 15 डिग्री सेल्सियस. ओके. व्हेन 300 ग्राम ऑफ हॉट वाटर एट 500 डिग्री सेल्सियस, 300 ग्राम हॉट वाटर 82 इक्वल टू कितना टेम्परेचर? 50 डिग्री सेल्सियस. is added to it. What is the initial temperature of cold water? T1 हम निकालेंगे. ओके. इसको कोल्ड वाटर को हम ये हॉट वाटर को ये कोल्ड वाटर में हम ऐड किए, इससे ऐड. ओके. So according to principle of calorimetry, heat lost by hot body equal to heat gained by cold body. So heat lost by hot water equal to heat gained by cold water. So अब हम लिख सकते हैं heat lost equal to heat gain.
तो हीट लॉस कितना होता है, mc डेल्टा टी, एम सी दो साइड पानी है, डेल्टा टी, इसका हॉट वाटर का टेम्परेचर कम होगा 50 माइनस टी इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड वाटर, एम कितना है 600, सी तो दो साइड में समान रहेगा, इसका टेम्परेचर T1 से T को बढ़ा था तो डेल्टा टी माइनस T1, ओके, इम्प्लाइज 2 हो गया, सी कट गया, तो इम्प्लाइज 50 माइनस टी इक्वल टू टी माइनस टी वन गिवन 15, इम्प्लाइज टी इक्वल टू 15 इंटू 2, यहाँ पे एक 2 है ना, इक्वल टू 30, ओके, टी इक्वल टू 50 माइनस 30 इक्वल टू 20 है, बट टी माइनस T1 इक्वल टू T1 इक्वल टू 50 implies 20 minus T1 equal to 15 implies T1 equal to 5 degrees Celsius. Okay, so this much. Then next one. Selena number 12. Then 7. Page 271. I am following new edition book, but in old edition book, somewhat numbers are altered. But same question you can also find from old edition book. तो चिंता की कोई कारण नहीं, न्यू एडिशन ओल्ड एडिशन में कोई तफात नहीं, खाली थोड़ा सा इसका नंबर अल्टर होता है। देन 7, an electric heater of power 600 वाट, P होता है 600 वाट। तुम्हारा जानकारी के लिए मैं बताता हूं, मैंने P इक्वल टू पावर इक्वल टू Q बाई टी, ओके, इम्प्लाइज Q इक्वल टू PT, P होता है वाट में, T होता है सेकेंड में, तो Q होता है जूल में, ओके। तो 500 वाट दिया हुआ, टाइम दे rises the temperature of 50 kg of material or specific heat this much, as you assume that all heat energy supplied, ना ये नहीं है, नंबर 7, an electric heater of power 600 watt rises the temperature of 4 kg of liquid, m equal to 4 kg of liquid from 10 degree to 15, delta T equal to 15 minus 10 equal to 5 degrees Celsius, okay. In 100 second, T equal to 100 second, okay. So find the calculate the heat capacity and specific heat capacity, C and C डैश दोनों निकालेंगे। देखो हम जानते Q इक्वल टू PT, P होता है 600 इंटू 100, तब 6 के पास 4 0, ये हो गया जूल। Q इक्वल टू MC डेल्टा टी इक्वल टू C डैश डेल्टा टी, इम्प्लाइज Q हो गया 1 2 3 4 इक्वल टू C डैश डेल्टा टी हो गया 5, हाँ, इम्प्लाइज C डैश हो गया 12000 जूल पर केल्विन या सेल्सियस दे रखा है, डिग्री सेल्सियस, इसको हम कर सकते 1.2 इंटू 10⁴ जूल पर डिग्री सेल्सियस, बट
C dash equal to M into C. Okay, imply 1 2 0 इक्वल टू एम कितना एम केजी में दे रखा है, इसको ग्राम को कन्वर्ट कर दो 4000 ग्राम 4000 इंटू सी ना, इसमें केजी में भी रख सकते, पर केजी कर देंगे, ग्राम में करने पर होगा लेकिन पर केजी भी कर देने पर होगा 4 इंटू सी implies C equal to 3000 जूल पर केजी। वहाँ केजी को केजी में मैं रखा था डिग्री सेल्सियस, तब इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³ जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। ओके, देन नेक्स्ट वन, पेज 268 एग्जाम्पल 7। पेज 268 example 7. Okay, 40 gram of water at 60 degree Celsius. 40 ग्राम ऑफ वाटर, इसका टेम्परेचर होता है 60 डिग्री सेल्सियस। यू जस्ट ऑलवेज यू ट्राई टू डू द ब्लॉक डायग्राम, देन ओनली द न्यूमेरिकल बिकम इजी। Is poured into a vessel containing 50 gram of water. Containing 50 gram of water. 50 gram of water at 20 degree Celsius. The final temperature of the mixture, ये final temperature हो गया 30 degree Celsius. Taking the specific heat capacity of water is 4.2 joule per gram Kelvin. We know this. Find the calculate the heat capacity of the vessel. To find heat capacity of the vessel equal to C dash equal to how much? Okay. देखो ये एक चीज, हीट अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। तो अब हम वाटर, ये कोल्ड बॉडी कौन है, ये इसका टेम्परेचर 60 था, इसका टेम्परेचर 20 था, सो दिस वन कोल्ड वाटर। तो अब इसको हम कोल्ड वाटर में इसे डालें, सो हीट लॉस्ट equal to heat gain according to principle of calorimetry. Okay, heat lost equal to mc delta t, m हो गया 40 into c 4.2 into delta t 60 minus 30, heat lost by water, hot water, heat gain by cold water equal to mc delta t, m हो गया 50 इंटू सी हो गया 4.2, डेल्टा टी हो गया 30 माइनस 20 प्लस हीट गेन्ड बाय द वेसल। देख वेसल वाली न्यूमेरिकल एक नया मैंने बनाया है इसमें, क्योंकि मैक्सिमम टाइम वेसल का मास को क्या किया जाता, नेग्लेक्ट किया जाता। हीट गेन्ड बाय द वेसल इक्वल टू, तो हो गया m इंटू सी इंटू डे। तो बेटर इसको एम सी डेल्टा टी को सी डैश भी बना सकते। तो डेल्टा टी होता है वेसल का भी टेम्परेचर वही रहेगा 30 माइनस 20। ओके, इम्प्लाई ये हो जाएगा 4168 इंटू 30 इक्वल टू
प्लस m इंटू सी को सी डैश ले लो इंटू ओके। सो इसको 168 इंटू 30 168 इंटू 30 50 40 इक्वल टू 2100 प्लस 10 सी डैश। इसको सॉल्व करने पर सी डैश आ जाएगा 294 जूल पर डिग्री सेल्सियस। ओके हो गया। सो फर्स्ट सेक्शन दैट इज मैंने एक्सरसाइज 11A और फर्स्ट पार्ट कंसर्निंग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड हीट कैपेसिटी those numerical completed. Now I will start numerical from calorimetry portion. So calorimetry portion means first page 282 number 9. Page 282 number 9 11B exercise. So these are the numerical dealing with latent heat. Page 282 number 9. A piece of ice of mass 40 ग्राम। देखो डायग्राम बनाना अगर इसको सही ढंग से तुम बना दिए न्यूमेरिकल बिकॉज टू इजी टू माने नंबर पीस ऑफ मास ऑफ 40 ग्राम आइस होता है 40 ग्राम। इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अच्छा इज एडेड टू 200 ग्राम ऑफ वाटर। 200 ग्राम of water at 50 degree Celsius. Okay. Calculate the final temperature of water. Okay. T होता है लेट फाइनल टेम्परेचर। तो हम इसको T1 ले सकते, कुछ भी ले लो T1 या T2। तो इसको हम डाले कहाँ पर, यहाँ पर। ये डालने पर इसका अवस्था क्या होगा, आइस जो 40 डिग्री में था, आइस का टेम्परेचर क्या हुआ 40 से 40 ग्राम ऑफ आइस एट 0 विल कन्वर्ट टू 40 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री बाय गेनिंग लैटेंट हीट। ओके। सो ये 0 होने के बाद वो 0 में नहीं रहेगा, क्योंकि ये कहेगा भाई तू तो आके मेरे साथ मिल गया, मेरा तो तुम्हारा टेम्परेचर 0 था, मेरे साथ मुझे तो जाना है टी, तो तुझे भी जाना है। तब तू आके पहले ही है यहाँ पे जब गिरा 40 ग्राम को चेंज कर दिया वाटर को 0 डिग्री को, लेकिन मुझे टी डिग्री तक जाना है, तुझे भी जाना है, दोनों साथ जाएंगे। ओके। तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। तो आइस लैटेंट हीट गेन करेगा। ओके। हीट लॉस्ट क्या हो गया बाबा, लैटेंट हीट गेन्ड बाय 40 ग्राम ऑफ आइस दैट इज ml। ओके। दैट इज ml मतलब m होता है 40, l 336। ओके। तो 40 इंटू 336 इसको ओके इतना हो जाएगा। हीट लैटेंट हीट
latent heat gained, ये गलत हो गया। बाई आइस, ये हो गया। देन हीट gained by water to change from 0 डिग्री सेल्सियस टू T डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो बच्चे, यहाँ पर ज़्यादा गलती कर देते। क्या होता है जब ये 0 में हुआ Q इक्वल टू ml आइस से वाटर को चेंज हुआ, तो 0 में से फिर वो आएगा T, तब ये होता है MC डेल्टा T। यहाँ वाटर का C डालेंगे इक्वल टू MC डेल्टा T, M लेंगे, M वही सेम 40 मैंने 40 ग्राम रहेगा। MC डेल्टा T इक्वल टू 40 इंटू 4.2 डेल्टा T। तब ये 50 था, इसका टेम्परेचर जरूर घटेगा, ये बड़ा टेम्परेचर 50 माइनस T। ओके, 40 इंटू 4.2 इंटू 50 माइनस T। ओके, ये हो जाएगा 4.2 ना 40 माइनस 40 इंटू 4.2, तो ये 0 वाटर 0 से T को चेंज होगा ना, T माइनस 0, सब T माइनस 0 इक्वल टू 40 इंटू 4.2 इंटू T माइनस 0, ये होगा 168 T। हीट लॉस्ट बाय वाटर, ये भी MC डेल्टा T इक्वल टू 200 इंटू 4.2 डेल्टा T। इसका टेम्परेचर 50 था, T को चेंज होगा, कम हो जाएगा 50 माइनस T। ओके, 200 इंटू 4.2 इंटू 50 माइनस T, ओके, इक्वल टू 42,000, ये कितना रहेगा 840 T। ये हीट लॉस्ट, ये हीट गेन। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन implies 13440 plus 168T equal to 42000 minus 840T। ओके, माइनस 840T। तब इसको सॉल्व करने पर T इक्वल टू आ जाएगा 28.33 डिग्री सेल्सियस। तो फाइनल टेम्परेचर बिकम 28.33 डिग्री सेल्सियस। देन नंबर 11, नंबर 11, पेज 282, नंबर 11, 250 ग्राम of water at 30 degree Celsius. Water at 30 degree Celsius is contained in a copper vessel. ये वेसल होता है कॉपर वेसल। ओके, कॉपर वेसल ऑफ मास 50 ग्राम, इसका मास होता है 50 ग्राम। ओके, कैलकुलेट द मास ऑफ आइस रिक्वायर्ड, यहां से हम आइस लेंगे, इसका मास कितना वो निकालने के लिए कहा। टू ब्रेक डाउन द टेम्परेचर ऑफ द वेसल एंड इट्स कंटेंट टू 5 डिग्री सेल्सियस। ओके, गिवन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर इज 0.4 जूल पर केजी का ग्राम केल्विन। ये इसका सी होता है 0.4 जूल पर ग्राम केल्विन। सी इट केयरफुली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो हम ये आइस को यहाँ पे डालेंगे। ओके,
ये जरूर मैं एक बार समझाना चाहूँगा। आइस को जब इसका ऊपर हम डाल दिए तब क्या हुआ, तो पानी का अंदर हम मिक्स कर दिए, हीट लाटेंट हीट गेन करेगा आइस, दैट इज एमएल। तो पानी हो गया जीरो में, जीरो को चेंज हो गया पानी में। तब जब जीरो को चेंज हो गया, 0 डिग्री वाटर को चेंज हो गया, इसको फिर जाना है 5 डिग्री को, वो हीट गेन करेगा एमसी डेल्टा। ओके, तो ये जो आइस, ये दो टेम्परेचर गेन किया, आइस एट 0 टू वाटर एट 0, क्यू इक्वल टू एम एल। देन वाटर एट 0 टू वाटर एट 5, हीट गेन किया, क्यू इक्वल टू एमसी डेल्टा टी। तो व्हाट अबाउट वेसल, वेसल का मान मास नेग्लेक्ट नहीं किया गया यहाँ पे। तो हीट गेन्ड बाय वाटर इन द वेसल इक्वल टू एमसी डेल्टा टी हो गया। ऑल्सो हीट गेन्ड बाय द वेसल, ये भी एमसी डेल्टा टी। तब ये लेफ्ट साइड में 2 है, राइट साइड में 2 है। ओके, समझे? बी क्लियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन। देखो, हीट लॉस्ट बाय हीट गेन बाय, फर्स्ट हीट गेन मैंने तो लिखता हूं, हीट गेन बाय आइस लाटेंट हीट, ml implies ml लॉस mc डेल्टा टी। इसका मतलब ये ml होता है लाटेंट हीट गेन बाय m ग्राम ऑफ आइस, देन लाटेंट हीट गेन बाय m gram of water from 0 to 5 degree equal to heat lost by water plus heat lost by the vessel. Okay, equal to ये हीट गेन वही हो गया, इक्वल टू ml कितना है, m तो जानते नहीं हम, ये 336, ये होता है m तो जानते नहीं, ये c पानी का इंटू 5। तो इन दोनों क्वांटिटी हो जाएगा 336 m प्लस 21 है। थ्री 57 एम, तो एक साइड में हो गया 357 एम। देन हीट लॉस्ट, देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट, आई रिपीट अगेन एंड अगेन, हीट लॉस्ट बाय वाटर प्लस हीट लॉस्ट बाय वेसल। यहाँ वेसल को इग्नोर नहीं किया गया। तब हीट लॉस्ट बाय वाटर एमसी डेल्टा टी, एमसी डेल्टा टी, डेल्टा टी ये वाटर के लिए, प्लस एमसी डेल्टा टी ये वेसल के लिए, इक्वल टू एम कितना पानी का था 250, सी होता है 4.2, डेल्टा टी 30 माइनस 5, 30 माइनस 5, ये वेसल के लिए, वेसल का मास 50, वेसल का सी दे रखा है 0.4, इसका टेम्परेचर भी, वेसल का टेम्परेचर जितना है पानी का टेम्परेचर भी इतना है, 30 माइनस 5 इक्वल टू 254.2, 254.2 ये आ जाएगा 250। ओके, 50 इंटू 0.4, 30 माइनस 5 ये आ जाएगा 500, implies 356 m equal to 26250 प्लस 500। इसको सॉल्व करने पर m आ जाएगा 74.993 ग्राम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके,
1 टू न्यूमेरिकल और करूँगा, शायद ऑलमोस्ट जितना भी होगा सब कंप्लीट हो जाएगा. So if you follow this method and continue this, then you can complete all things. Then number 13, page 282. All types of numerical I am trying to complete here. Number 13, page 282. Calculate the total amount of heat energy required to convert 100 gram of ice. They say you just do the block diagram. Ice, 0 degree Celsius, 100 gram of ice, minus 10 degree Celsius. अच्छा, to water at 100 degree. Be careful, 100 gram ice minus 10, it will change. 100 gram ice, 0 degree Celsius. So Q1 equal to MC डेल्टा टी. बी केयरफुल, यहाँ डेल्टा टी होगा 0 ऑफ माइनस 10 प्लस 10 हो जाएगा. सी हो जाएगा आइस के लिए 2.1. क्या आइस है ना, तो आइस एट 0 हो गया. आइस एट 0 से तो अब हम इसमें Q इक्वल टू ml, 100 ग्राम वाटर, ओके, 0 डिग्री सेल्सियस. सो Q इक्वल टू ml. ओके, हो गया. वाटर एट 0 हो गया. वाटर एट 0 से हम जाएंगे वाटर एट 100, वही 100 ग्राम. ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. 100 ग्राम वाटर 100 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पे हम डालेंगे Q3 इक्वल टू MC डेल्टा टी. डेल्टा टी 100 माइनस 0, C इक्वल टू 4.2. याद रखना. ओके, ये तीनों को हम प्लस कर देंगे कि टोटल कितना हीट, हाउ मच हीट एनर्जी. 13 नंबर, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड. तो तीनों हीट एनर्जी को हम प्लस कर देंगे. Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू Q1 हो गया, M हो गया 100 इंटू 2.1 डेल्टा टी 0 10. वेरी बी केयरफुल. 0 ऑफ माइनस 10 इक्वल टू प्लस 10 प्लस ml. M हो गया 100, L हो गया 336, ओके, प्लस Q3. ये हो जाएगा M हो गया 100. C यहाँ पे वाटर के लिए 4.2. टेम्परेचर वाटर का फाइनल टेम्परेचर 100 माइनस 0. ओके, इन तीनों को हम ऐसे कर सकते. ये 2100, ये प्लस 33600, ये होता है प्लस 00. ओके, इन तीनों को प्लस करने पर पूरा क्वांटिटी आ जाएगा 77700 जूल. 00 जूल. इतना तुम्हारा हीट एनर्जी हुआ. इसको अगर हम साइंटिफिक यूनिट भी कर सकते, इक्वल टू 7.77 इंटू 10⁴ जूल. ये एक इम्पोर्टेंट हो गया, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल. ओनली वन न्यूमेरिकल लेफ्ट. सो पेज 276. दिस इज एग्जाम्पल 3 फ्रॉम सेलिना बुक. Page 276. That is example 3. Okay. ये सब्सटेंस इनिशियली इन ए सॉलिड स्टेट एट 0 डिग्री सेल्सियस. इसका ग्राफ दे रखा है. ओके, ये टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, ये टाइम ना, ये टाइम ग्राफ नहीं, वो हीट, अमाउंट ऑफ हीट. ये Q दे रखा है. तो मैंने टेम्परेचर टाइम का ग्राफ तो बनाया था. ये Q दे रखा है जूल. ओके, सो ऐसे ये
तो अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यहाँ पे 1000 लिखा हुआ। इसके बाद 6 7 2 3 4 इसमें 200 लिखा हुआ 2000। तो यहाँ 80। ओके, तो अब इससे किया गया 1000 से 1 2 3 4 इससे इससे ए बी सी डी। देखो ये 1000 ये 2000 मतलब कितना घर के लिए 1000 1 2 3 4 5 5 डिवीजन के लिए 1000 एक डिवीजन के लिए तब कितना होगा 200। तो इसका अंदर कितना डिवीजन 1 2 3 4 4 डिवीजन के लिए 800। ओके हो गया। इफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस, ये सॉलिड का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक सॉलिड इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी दे रखा है 500 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 0.5 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। यूज द ग्राफ टू फाइंड द मास ऑफ सब्सटेंस। सबसे प्लेन होता है Q इक्वल टू ml बिकॉज दिस इज द latent heat constant temperature, so Q equal to ml implies 800 equal to m into L। गलत हो गया। हम ये तो Q इक्वल टू ml हम कैसे L तो नहीं दिया है, तो अब हम कहेंगे यहाँ से यहाँ तो कितना हीट हम देखेंगे Q इक्वल टू 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ पर फिफ्थ घर को 1000 1000 के बाद 1 2 3 1000 के बाद 1 2 3 अभी ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो हम जानेंगे ये होता है ये सॉलिड का Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। यहाँ पे 1 2 3 4 4 मतलब 800 इक्वल टू m इंटू 0.5 इंटू डेल्टा टी टेम्परेचर 80 माइनस 0। बी केयरफुल, यहाँ टेम्परेचर 80 माइनस 0 because this will is the heating curve of the solid Q equal to mc delta T not ml। okay, so from this you can find m equal to 0.20 gram implies m equal to 20 gram। okay, then the specific latent heat of fusion of this substance, ये तो बेहतर चीज Q इक्वल टू ml, यहाँ मैंने कर देता हूँ Q इक्वल टू ml। सेकेंड बिट Q होता है देखो 1 2 3 4 800 इंप्लाइज 800 इक्वल टू m कितना निकला m होता है 20 ग्राम m इंटू L। So L equal to 40, L equal to 40
joule per gram. ओके, L इक्वल टू 40 जूल पर ग्राम. सो ऐसे ग्राफ दे रखा है. मैंने तुम लोग को ग्राफ सिखाया था टेम्परेचर टाइम, लेकिन यहाँ टेम्परेचर हीट. तो अब ये हम देखते हैं पूरा ये घर के लिए 1 2 3 4 5 घर को दिया 1000, एक घर को 200. तो अब ये 800, ये भी 1 2 3 4 4 घर के लिए ये 800. यहाँ Q इक्वल टू MC डेल्टा T, यहाँ Q इक्वल टू ML. ओके, सो I think all portion of the numerical, different types of numerical, the type of numerical which are asked in the exam, I try to cover every type of numerical. So today, calorimetry completed. Best of luck for you all for the forthcoming examination. I hope you will definitely score and answer the question dealing with calorimetry. And one question definitely you get, and you will definitely solve the question. Hoping you all the best. Thank you. Thank you. Yeah.